Hello everyone, myself Garima. This session is for JNM second year and the topic is tracheoesophageal fistula. Firstly, what is trachea? Trachea is also called as windpipe. It is a tube that carries air to and from the lungs. Secondly, what is esophageal? Esophageal is esophagus. Esophagus is also called as food pipe. It is a tube that passes food from mouth to stomach. Thirdly, what is fistula? A fistula is an abnormal connection between two organs in the body or between an organ. So what happens in tracheoesophageal fistula? Tracheoesophageal fistula में abnormal connection होता है in one or more places between the esophagus and the trachea. Tracheoesophageal fistula is also known as a TEF, T-E-F, TEF. Normally, the esophagus and the trachea are two separate tubes that are not connected. तो जब बेबी लिक्विड स्वेलो करता है तो वो डायरेक्ट माउथ से स्टमक में जाता है थ्रू ईसोफेगस, बट अ बेबी विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जब वो लिक्विड स्वेलो करता है तो वो माउथ से डायरेक्ट ट्रेकिया में जाता है एंड फिर ट्रेकिया से डायरेक्ट लंग्स में जाता है, जिससे बेबी को निमोनिया हो सकता है एंड अदर लंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. Introduction. Tracheoesophageal fistula and esophageal atresia are the malformations of digestive systems in which esophagus does not develop properly. The esophagus is a tube that normally carries food from mouth to stomach. These disorders are commonly found among premature or low birth weight infants and mothers having polyhydramnias. Tracheoesophageal fistula and esophageal atresia एबनॉर्मेलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें ईसोफेगस प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है. ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक ट्यूब है जो कि नॉर्मली कैरीज करती है फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. दीज डिसऑर्डर्स ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड ईसोफेजियल अट्रेशिया आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट इन्फेंट्स में, या फिर उन बेबीज़ में जिनकी मदर्स को पॉलीहाइड्रोमनियाज था. व्हाट इज़ पॉलीहाइड्रोमनियाज? पॉलीहाइड्रोमनियाज इज़ अ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. व्हाट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड इज़ अ फ्लूइड that surrounded the baby in the uterus during pregnancy. Definition. Esophageal atresia. It is a failure of the esophagus to form a continuous passage from the pharynx to the stomach during embryonic development. Esophageal, as I told you earlier, esophageal is esophagus. It is a tube that passes food from mouth to the stomach. Now atresia. Atresia comes from a Greek word. In this, a means no or without. Trachea, T-R-E-S-I-A. Trachea means hole or orifice. So atresia is a congenital condition in which there is absence or closure of a natural passage of the body cavity. So what happens in esophageal atresia? In this, esophagus properly formed नहीं होता है while the fetus develops before birth, जिसकी वजह से क्या होता है, esophagus टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इसका वन पार्ट कनेक्ट होता है थ्रोट से एंड अदर पार्ट कनेक्ट होता है स्टमक से. हाउएवर बोथ द पार्ट्स डू नॉट कनेक्ट टू ईच अदर. अब esophagus टू पार्ट्स में डिवाइड है तो बेबी जिस भी टाइप का लिक्विड स्वेलो करेगा तो वो लिक्विड स्टमक में नहीं जाता है, वो लिक्विड ईसोफेगस के अपर पार्ट में ही रहता है. एज यू सी इन दिस पिक, ईसोफेजियल अट्रेसिया, ट्रेकिया नॉर्मली फॉर्म्ड है बट ईसोफेगस टू पार्ट्स में डिवाइड है. एक अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट थ्रोट से कनेक्ट है, लोअर पार्ट ईसोफेगस स्टमक से कनेक्ट है. अब तो इसलिए अगर बेबी कोई किसी भी टाइप का लिक्विड अगर स्वेलो करता है तो वो लिक्विड बेबी के अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में ही रहता है. नाउ इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला. ईसोफेजियल अट्रेशिया यूजुअली किसके साथ होता है? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के साथ. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज़ एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड ईसोफेगस. एज यू आर सीइंग इन दिस पिक, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला ट्रेकिया है एंड ईसोफेगस है, बट ईसोफेगस एंड ट्रेकिया एबनॉर्मली कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ बाय फिस्टुला. इंसिडेंस रेट. Tracheoesophageal fistula occurs in 1 in 3500 births with slight male dominance. Esophageal atresia with or without tracheoesophageal fistula is common in prematurity, with 34% of cases weighing less than 2500 grams. Etiology. The exact cause of these anomalies is not known in most cases. Some factors influencing the incidence of the problems are
First is heritable genetic factor, second is teratogenic stimuli, third is intrauterine environment. Now the pathophysiology. In this, जिन बेबी को ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड ईसोफेजियल अट्रेशिया होता है वो बेबी इफ़ेक्टिवली स्वेलो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सलाइवा और फीड इन अपर ईसोफेजियल पाउच एंड एस्पिरेशन इन रेस्पिरेटरी पैसेज. देन गैस्ट्रिक सेक्रीशंस रीगर्जिटेट होते हैं थ्रू डिस्टल फिस्टुला. देन एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है बिकॉज ऑफ एयर एंटरिंग द लोअर ईसोफेगस थ्रू फिस्टुला एंड पासिंग इनटू द स्टमक ड्यूरिंग क्राइंग. बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में डेवलप ड्यू टू गैस्ट्रिक डिस्टेंशन एंड एलिवेशन ऑफ डायफ्राम. Now the classification. In this, first is esophageal atresia with tracheoesophageal fistula can be classified as follows. Type 1. टाइप 1 इज़ ईसोफेजियल अट्रेशिया विदाउट फिस्टुला. ये आपको 8% केसेस में देखने को मिलेगा. सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है. इसमें क्या होता है, इसमें देयर इज़ अ नो कनेक्शन ऑफ ईसोफेगस टू ट्रेकिया. ईसोफेगस का ट्रेकिया से कोई कनेक्शन ही नहीं होता है और ईसोफेगस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अपर एंड लोअर. बट अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट जो होता है वो ब्लाइंड होता है ईसोफेगस का. ब्लाइंड मीन्स क्लोज्ड होता है. देन आता है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है, ईसोफेजियल अट्रेशिया विथ ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला. ये एक रेयर कंडीशन है जो आपको 1% लेस देन 1% केसेस में देखने को मिलेगी. इसमें क्या होता है, अपर सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस ओपन होता है ट्रेकिया में बाय फिस्टुला. मीन्स अपर सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस वो कनेक्ट होता है ट्रेकिया से, ठीक है, बाय फिस्टुला. और जो लोअर सेगमेंट होता है ईसोफेगस का वो ब्लाइंड होता है, मतलब वो क्लोज्ड होता है. टाइप थर्ड इज़ अ ईसोफेगस अट्रेशिया विथ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला. ये आपको 80 to 90% केसेस में देखने को मिलेगा. मोस्ट कॉमन टाइप है. इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉक्सिमल और अपर सेगमेंट the esophagus has blind and the distal lower segment of esophagus connects into trachea by a fistula. इसमें क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है esophagus का वो blind होता है, मतलब वो closed होता है, और जो lower पार्ट होता है, lower segment होता है esophagus का वो trachea से connect होता है by a fistula. Then type third is esophageal atresia with tracheoesophageal fistula both upper एंड लोअर सेगमेंट. ये एक रेयर कंडीशन है जो आपको लेस देन 1% केसेस में देखने को मिलेगी. इसमें क्या होता है, देयर इज़ ईसोफेजियल अट्रेशिया विद फिस्टुला बिटवीन बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स ऑफ ट्रेकिया एंड ईसोफेगस. इसमें ईसोफेगस का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट मीन्स अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट दोनों ही ट्रेकिया से कनेक्ट होते हैं. देन टाइप फिफ्थ इज़ एच टाइप ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला. ये आपको 4% केसेस में देखने को मिलेगा और ये यूजुअली डायग्नोस्ड नहीं होता है एट बर्थ. इसमें क्या होता है, बोथ अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस ओपन इनटू ट्रेकिया बाय अ फिस्टुला. इसमें क्या होता है कि अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस वो कनेक्ट होते हैं किससे, ट्रेकिया से, जो कि एच शेप में होते हैं कनेक्ट, ठीक है. और इसमें आपको ईसोफेजियल अट्रेशिया प्रेजेंट नहीं होता, ईसोफेजियल अट्रेशिया एब्सेंट होता है. एज यू आर सीइंग इन दिस पिक, नॉर्मल एनाटमी, फर्स्ट नॉर्मल ट्रेकिया है एंड नॉर्मल ईसोफेगस है. नाउ द सेकेंड पिक इज़ अट्रेशिया विद डिस्टल फिस्टुला. ये टाइप थर्ड है. इसमें क्या होता है कि ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस का अपर पार्ट जो है वो ब्लाइंड है और लोअर पार्ट ट्रेकिया से कनेक्ट है. देन थर्ड पिक इज़ अट्रेशिया विद डबल फिस्टुला. ये टाइप फोर्थ है. इसमें क्या है कि अपर पार्ट, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट ईसोफेगस का वो ट्रेकिया से कनेक्ट है. देन फोर्थ पिक इज़ अट्रेशिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला. ये टाइप सेकंड है. इसमें अपर सेगमेंट ईसोफेगस का ट्रेकिया से कनेक्ट है एंड लोअर सेगमेंट ईसोफेगस का ब्लाइंड है, मतलब क्लोज्ड है. देन फिफ्थ पिक इज़ अट्रेशिया. ये टाइप फर्स्ट है जिसमें ईसोफेगस का अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट ब्लाइंड है बट एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं है. अट्रेशिया टाइप फर्स्ट है. इसमें क्या है कि अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस ब्लाइंड है, क्लोज्ड है.
देन लास्ट आता है फिस्टुला, ये टाइप 5th है। इसमें क्या है कि अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस ट्रेकिया से कनेक्ट हैं बाय अ फिस्टुला, जो एच शेप में कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला गया है एच टाइप। Then clinical manifestation, the clinical features appear soon after birth. The baby present with excessive salivation, blowing bubbles from mouth, constant drooling, large amount of secretions from nose, coughing, gagging, choking and cyanosis. Then intermittent explained cyanosis होगा, which occurs because of the laryngospasm caused by aspiration of accumulated saliva in blind pouch. देन जब हम बेबी को फर्स्ट फीड देंगे तो आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड स्वेलो द इन्फेंट कफ्स, चॉक्स और फ्लूइड रिटर्न्स आउट थ्रू नोज एंड माउथ. Then the infant struggles for breath and cyanosis occur, and only last one is only abdominal distension and poor feeding may found in some infants. Then डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम करेंगे क्या, एक सिंपल टेक्निक है इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए. हम इसमें एक प्लेन कैथेटर लेंगे, उस प्लेन कैथेटर को थ्रू नोज़ और माउथ स्टमक में इंसर्ट करेंगे, है ना. अगर वो कैथेटर डायरेक्ट स्टमक में जाता है थ्रू नोज़ और माउथ, तो इसका मतलब बेबी को ईसोफेजियल अट्रेशिया और ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला नहीं है. बट अगर वो कैथेटर नहीं जाता है नोज़ और माउथ से डायरेक्ट स्टमक में नहीं जाता है और कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि बेबी को ईसोफेजियल अट्रेशिया है या फिर ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला है. Then next is antenatal diagnosis of the condition can be done by USG. Then postnatal diagnostic procedure include, first one is ultrasonography, then second is chest x-ray, third is bronchoscopy. Bronchoscopy हम क्यों करते हैं, to confirm the diagnosis. Then last one is ECG. ECG हम क्यों कर रहे हैं, to detect the associated cardiac anomalies. देन मैनेजमेंट क्या है, इमीडिएटली आफ्टर डायग्नोसिस जैसे ही हमें पता चलेगा कि बेबी को ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला है, तो हम बेबी को प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखेंगे, मींस 30 डिग्री पोजीशन में रखेंगे टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एंड उसको कुछ भी माउथ से नहीं देंगे, एंड नथिंग पर माउथ. देन एयरवे क्लियरेंस करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एस्पिरेशन करेंगे. नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब टू बी केप्ट इन C2 मीन्स नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम तब तक रखेंगे जब तक बेबी की सर्जरी नहीं हो जाती है, एंड सक्शनिंग टू बी डन फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन. देन द ब्लाइंड पाउच, जो ब्लाइंड पाउच है वो हम वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन से टू प्रिवेंट ब्लॉकिंग ऑफ ट्यूब विथ थिक म्यूकस. देन गैस्ट्रोस्टमी करेंगे. व्हाट इज़ गैस्ट्रोस्टमी? गैस्ट्रोस्टमी इज़ अ सर्जिकल ओपनिंग इनटू द स्टमक. अ गैस्ट्रोस्टमी मे बी यूज्ड फॉर फीडिंग, usually via a feeding tube called gastrostomy tube. Gastrostomy tube is done to decompress the stomach and to prevent aspiration, and afterwards to feed the infant. Then supportive care should include maintenance of nutritional requirements and warmth, prevention of infection, antibiotic therapy, respiratory support, detection and treatment of complications, continuous monitoring of patient's condition. Then last one is chest physiotherapy and postural drainage. Surgical management. The surgical correction of defect is done by end-to-end anastomosis with excision of the fistula. What is anastomosis? Anastomosis is a connection or opening between two things. इसमें हम करेंगे क्या, हम ईसोफेगस का अपर पार्ट, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, फिस्टुला को रिमूव करेंगे. ओके, द सर्जिकल करेक्शन ऑफ डिफेक्ट इज डन बाय एंड टू एंड एनास्टोमोसिस विद एक्सीजन ऑफ द फिस्टुला.
ईसोफेगस के अपर एंड लोअर पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे एंड फिस्टुला जो है उसको रिमूव करेंगे. दिस इज डन व्हेन द इन्फेंट हैज़ मोर देन 2 kg बॉडी वेट एंड नो pneumonia present and the baby is clinically stable. Then nursing management. In this, first is pre-operative care. Pre-operative care includes, first is as soon as the diagnosis is confirmed, withhold the oral feedings. Then second is provide oxygen therapy to treat cyanosis. Next is suction the esophagus to prevent choking. Next, check and record vital signs and report the abnormalities immediately to the physician. Then next is give IV fluids to maintain nutritional status of the child. And next is watch for abdominal distension. A gastrostomy may be done to decompress the stomach. Then post-operative care. Post-operative care includes place the baby in a warm incubator to maintain body temperature. Then clear the air passage by suctioning to maintain patent airway. Then administer oxygen if necessary. Next, give IV fluids to maintain nutritional status of the child and to prevent dehydration. Then next is check and record vital signs, the amount and color of nasogastric aspiration and thoracic aspiration frequently. Then next is observe and report any complications such as bleeding. Then administer antibiotics as prescribed. Then maintain strict aseptic techniques while caring for chest tube drainage and surgical wound. Then next is change position of the baby in every 2 hourly. And then next, oral feedings are started only when instructed by the surgeon. And the last one is involve the parents in the care of the child. Thank you.